एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले पढ़ा लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक। नेक्स्ट डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफी state of various aspects, study of various aspects of human beings in the economy। बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। Demographic conditions during the British rule exhibited all the features of a stagnant keyword है stagnant and a backward economy, stagnant and a backward economy। ध्यान से देखेंगे, stagnant and backward, ये keywords यूज करने हैं, stagnant and backward economy। कह रहे जो फीचर्स थे ना वो सारे एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी के ही हम फीचर्स एग्जिबिट कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस टेकन? इट वाज टेकन इन द ईयर 1881। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, कह रहा है वो कोई इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, बट यस फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज टेकन इन द ईयर 1881। The census revealed unevenness in India's population growth। Unevenness मतलब कभी population बढ़ रही है, कभी population गिर रही है, सिर्फ नहीं constantly बढ़ती नहीं जा रही। Unevenness, कभी population बढ़ रही है, कभी population गिर भी रही है। गिरेगी कब? When the number of deaths are more than the number of births। From 1881 onwards, census operations were carried out after every 10 years। तो Britishers ने शुरू करा था ये census। 1921, very very important point, it is called the year of great divide। year of great divide, अब तो खैर सबने ही पढ़ लिया। 1920 में भी एक फ्लू आया था, yes और no? हर 100 साल के बाद आता है। yes। 2020 में आया, 1920 में भी फ्लू आया था। 1921 is called the year of great divide। it is called the year of great divide। why? बिफोर 1921 इंडिया की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी, कभी गिर रही थी, अनइवन पैटर्न था। बट आफ्टर 1921 इंडिया की पॉपुलेशन गिरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। Why is 1921 called the year of great divide? Before 1921 India was in the first stage of demographic transition। The second stage of transition began after 1921। So the year 1921 is described as the year of great divide। इसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन गिरी नहीं थी। तो which is the year of great divide? 1921। When was the first official census taken? 1881। ये dates, years बहुत important है। अब एक एक करके डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। Number one, high birth rate, high death rate। Birth rate refers to the number of children born per thousand in a year। Population कितनी है, per thousand नई births कितनी हो रही हैं। तो death, meaning of birth rate, number of children born per thousand in a year। per thousand का मतलब होता है एक इकोनॉमी, अगर बर्थ रेट फॉर एग्जांपल 50 है, तो अगर पॉपुलेशन हमारी 1000 है ना, तो हर साल 50 नई बर्ड्स हो रही हैं। तो पॉपुलेशन अगर 100,000 है तो 50,000 बर्ड्स। तो ऐसे मतलब 100,000 की 50 है तो 10,000 की 500, 1 लाख की 5,000, 10 लाख की 50,000, 100,000 की 5 लाख। तो नंबर ऑफ बर्ड्स per thousand in the population। death rate, number of deaths per thousand। डेट्स याद होने चाहिए। बर्थ रेट क्या था 48 और डेथ रेट क्या था 40। बोथ वर वेरी हाई। डेथ रेट 40, बर्थ रेट भी 48। both birth rate and death rate were very high, nearly 48 per thousand birth rate, 40 per thousand
death rate. High birth rate and death rate. Extremely low literacy rate. The overall literacy level was less than 16%. Out of this, female literacy level was at a negligible low of about 7%. Literacy rate 16% of the population was considered as literate. Poor health facilities. Public health facilities were either unavailable to large mass of population, or when available, they were highly inadequate. As a result, water and airborne diseases were widespread and took a huge toll on life. High infant mortality rate. Infant mortality rate refers to the number of infants dying before reaching 1 year of age. 1 साल को भी क्रॉस नहीं कर पाए. 1000 अगर बर्थ्स हुई तो उसमें से कितने लोग before they died before reaching the age of 1 year. Infant mortality rate. It was quite alarming. 218 per 1000. अगर एक साल में 1000 बर्थ्स होती हैं तो उसमें से 218 बच्चे एक साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते. In contrast to infant mortality rate of 44 per 1000 in 2011. 2011 last official census was taken in 2011. तब 44 था infant mortality rate, and at the time of independence it was 218. Very high, almost 5 times. High infant mortality rate, low life expectancy. Life expectancy, it refers to the average number of years for which people are expected to live. Life expectancy was also very low, 44 years, in contrast to the present 68 years. अब यार ये important point है और थोड़ा सा controversial point है. संदीप गर्ग तो इसको 44 years कहता है, but कुछ books में ये 32 years है. As per Sandeep Garg 44 है, as per some other books 32 है. किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है? चैप्टर 1 तो मेरे स्कूल में हो चुका. कोई आइडिया? आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ले रहे हो या 32? 44. संदीप गर्ग फॉलो कर रहे हो, जनवरी कर रहे हो? तो हम लोग तो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं. एनसीईआरटी इनसफिशिएंट है बेटा, ये तो पता है ना? हाँ सर. एनसीईआरटी इज इनसफिशिएंट, उसमें ज्यादा चीजें. संदीप गर्ग इज एनसीईआरटी बेस्ड, इलैबोरेटेड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी है संदीप गर्ग ना, तो वो सबको कवर करता ही है. बट प्लीज, सम बुक्स दे से 32, बट आप 44 फॉलो करेंगे अभी, ठीक है ना? ओके सर. ओके. और किसी के स्कूल में? द्विज आपके स्कूल में भी होगा, बट आपको कहाँ याद होगा ये सब छोटी छोटी बातें? सर 44 ही लिया है सर, एनसीईआरटी में वही लिखा है. अच्छी बात है 44, बट दिखाओ एक छोटी सी चीज. मतलब खैर ये भी चेंज ही होती रहती है इनके भी मन में. लाइफ expectancy on the eve of independence. दिख रही है? यस सर. 35. ये दिख रही है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी was how many years? 32. तो इसीलिए कह रहा हूं मैं कि बट हम वो फॉलो करेंगे जो हमारी बुक बोले. तो एक होता है ना नॉलेज से, हमें पता होना चाहिए कि 44 इज नॉट करेक्ट. वो बुक में छपा हुआ है, चल रहा है. 44 इज नॉट करेक्ट, 44 बहुत ज्यादा है. बट मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में आएगा तो 44 ही लिखना. ओके? ओके सर. और जब स्कूल में ये टॉपिक डिस्कस हो रहा हो तो एक बार ही बस
वैसे ही डिस्कशन से कर सकते हो कि गूगल 44 नहीं बोल रहा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम 44 यूज कर रहे हैं, नोट्स में भी 44 है, बुक में भी 44 है संदीप कर, बट कहीं 32 भी है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको बोला कि ध्यान रखना है इसका। डेमोग्राफिक कंडीशन में लास्ट पॉइंट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। There was no reliable data about the extent of poverty. जब वो दिल से कैलकुलेट ही नहीं कर रहे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, दे नेवर मेड एनी सिंसियर एफर्ट्स। वो तो कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जो पीछे पड़ रहे थे, बट because of that there was no reliable data about the extent of poverty. But there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period. The overall standard of living of common people in India was very low, and there was widespread poverty in the country. It can be concluded that British rule was the main reason to worsen profile of India's population. Why? Because they were not spending any money for the betterment of Indian economy. तो दो क्वेश्चंस डिस्कस करें हमने, एक तो स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक कंडीशन। इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक कंडीशन में, बर्थ रेट 48 per 1000, डेथ रेट 40 per 1000। उससे पहले फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज टेकन इन 1881। 1921 is referred to as the year of great divide। extremely low literacy rate 16% overall, 7% in case of females, poor health facility, high infant mortality rate 218 per 1000, 2011 में 44 per 1000, low life expectancy 44 years, I repeat 44 years, widespread poverty because although we do not have any reliable data because no sincere efforts were made to calculate the national income और per capita income calculate होगी तभी तो पता चलेगा ना below poverty line कितने लोग हैं। जब पर कैपिटा इनकम ही ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही, लोगों की इंडिविजुअल इनकम ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही, तो पता कैसे चलेगा कि पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन है। बट ये पता था, दिख रहा था सिचुएशन देख के जो समझ आ रहा था, एक्सटेंसिव पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। आगे चलेंगे।